since yesterday, there are a lot of misleading statements that are circulating all over Jammu and Kashmir. सबसे prominent जो news circulate कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में वो ये है that कल सीनियर काउंसिल निर्मल कोतवाल जी ने he recused himself from the matter और अब विषय ये बना कि शायद उनके जाने से, उनके रिक्यूज करने से महराज मलिक जी का जो केस है वो खराब हो सकता है. I want to clarify this very vociferously, very explicitly that महराज मलिक जी की बहुत ही रोबस्ट लीगल टीम है. मैं रिपीट करूंगी उस लीगल टीम में जितने भी मेंबर्स हैं. एडवोकेट शेख शकील अहमद जी, एडवोकेट मुजफ्फर खान जी, both of them are senior counsels, assisting counsel Apu Singh Salatia जो कि मैं हूं, and we have a strong legal supporting team. Advocate Arvind Bandral, Advocate Joginder Thakur, Advocate Gaurav Sarangal, Advocate Sandeep Sharma, Advocate Asim Hashmi, and Advocate M. Tariq Mughal. We are very hopeful कि ये जो पूरी टीम है, it is going to work very consensuously for the benefit of Mr. Mehraj Malik. और दूसरा मैसेज जो मैं देना चाहूंगी वो मेहराज मलिक जी द्वारा है. उन्होंने एक मैसेज पहुंचाया है अपने सभी फॉलोअर्स के लिए, दैट इज हेल्थ इज फाइन. वो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अंदर हैं और जल्द ही जल्द वो आशा करते हैं कि वो रिलीज होंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. Who is replacing senior counsel Mr. Nehru? As of now, we definitely have our talks on with a lot of other senior counsels, but we are not going to be revealing any names as of now. Somebody will replace. Yes, definitely. Maybe there are a battery of senior counsels who will represent Mr. Mehraj Malik the day we enter the High Court. और क्या पता वो एक हो या दो हो या तीन हो, that perhaps we will leave it on the day when we enter the premises of the High Court. When are you going to file the petition? Very soon. वो क्योंकि legal some information I think needs to be very classified, so वो information अभी हम delve out नहीं करेंगे. ये जो you are saying that you are talking to some senior counsel. That's what I'll just repeat myself, that there might be a battery of senior counsels. एक नहीं, दो नहीं, क्या पता तीन हो. But whosoever it is, we will reveal it on the day once we enter the premises of the J&K High Court. Is there any chance either they will be from outside J&K or? I will not reveal anything as of now. जिस दिन हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में habeas corpus की petition लेके जाएंगे, उस दिन I'm sure all the suspense will be cleared out. There are some talks about Rahul Pant and K.S. Johar. Is there anything confirmed about this? I think then you should contact these senior counsels because I will not be. I am not allowed to leave any information for the expertise of the media. तो दूसरा ये कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के बाद आपके पास प्रावधान था कि आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे होम सेक्रेटरी को भी और डिप्टी मिनिस्टर को भी, तो आपने उसको एग्जॉस्ट किया ही नहीं. ना आपकी रिप्रेजेंटेशन होम सेक्रेटरी के पास गई है, ना आपकी रिप्रेजेंटेशन डिप्टी मिनिस्टर को गई है. सो इज देयर आर यू डूइंग इट डिलिबरेटली? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं इसलिए किया जा रहा है ताकि कोर्ट में जाए, लंबा खींचे और जिस तरीके से खबरों में चलता रहे और उसकी पॉलिटिकल बेनिफिट्स रीच किए जा सके. I think Hashmi ji, the ones who have given you this kind of information, I think it's a very ludicrous information. बहुत ही puerile argument होगा कि हम इस केस को ज्यादा लंबा खींचना चाहेंगे. The fact of the matter is, when it comes down to representation, इसमें कोई legal nitty-gritty involved है. Whether we were allowed, whether we have gone before the 19th या हम 19th के बाद 20 से 21 को जाएंगे, उसके पीछे हमारा कोई लीगल एजेंडा है. But of course, this is not the criteria that we want this matter to stretch for the next few months or so. इसके पीछे कोई भी political vendetta नहीं है और कोई भी political agenda नहीं है. और जो भी इस तरह की खबर को leak out कर रहा है that we want this matter to stretch in the Honorable High Court, I think it's a very puerile argument. But आपका एमएलए तो क्या कहते हैं गिरफ्तार है, जेल में है. Representation was one way of reaching out to the government and finding out from the government whether they want to revoke this PSA at this stage or not. So you have chosen not to. We have chosen as a member of the legal team. I have chosen with the permission of my senior counsels. I have to keep mum on this. Whether the representation has gone or whether the representation will go another 1 or 2 days, that we will leave it to the senior counsel. I cannot delve out any information. एक लास्ट सवाल जी, मतलब अक्सर ये होता है कि वकील साहबान ये करते हैं कि कोई ऐसा मामला जिस मामले में आपका मीडिया में बात करें, जी,
मामले पर कोई असर पड़ता हो जी तो उसको आप पब्लिक ना करें तो बात समझ में आती है। जी। पर इसमें कौन सी चीज ऐसी रह गई है जिसको पब्लिक करना बाकी रह गया है? सारी चीजें पब्लिक में हैं, तो उनके लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हैबियस कॉर्पस लेकर आप कब जाएंगे? एंड देन वन फाइन मॉर्निंग वी गेट टू हियर दैट यू आर द वन लीडिंग द टीम इज सेइंग कि मुझे टीम को लीड नहीं करना। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि बाकी जो वकील साहिबान, मुझे कुछ वकील तो ये भी कह रहे हैं कि जी आपने फलानी को वकील किया हुआ है, इसको तो पीएसए की कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है। तो अगर टीम की ये हालत है, उसके बाद जब आपकी टीम के मेंबरों से बात करो और किसी भी चीज के बारे में बात पूछो कि वो कहता है कि अच्छा इस पे तो हम बात कर रहे हैं, कोई और कुछ और कह रहा है। सो I'll clarify this. क्योंकि because you've got so many. No. I'll clear this out. Number one, first because you've spoken about Mr. Nirbal Singh Kotwal. देखिए Mr. Nirbal Singh Kotwal because he is a very distinguished lawyer. वो मेरे सीनियर भी हैं, उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और तजुर्बे में भी बड़े हैं, इन वकालत में भी। उनके ऊपर मैं कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। बट वन थिंग आई विल क्लैरिफाई कि सीनियर काउंसिल निर्मल कोतवाल जी को एंगेज किया गया था उनके साथ प्रॉपर डिस्कशन के बाद। बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट द काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट ही हैज रिलीज्ड। वो हम उनकी अभिव्यक्ति की आजादी सबको, वी विल लीव इट टू हिज, उन्हीं की एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम छोड़ देते हैं और उनकी अपनी मर्जी थी, व्हाटएवर रीजंस ही हैज गिवन देम इन द प्रेस रिलीज। नाउ कमिंग डाउन टू योर सेकंड क्वेश्चन कि क्या हमारी पूरी जो टीम है हम लोग क्यों रिवील नहीं कर रहे इन्फॉर्मेशन। देखिए हाशमी सर, देयर आर सर्टेन निटिग्रिटीज दैट आर इन्वॉल्व, टेक्निकल निटिग्रिटीज होती हैं, हम अपना डिफेंस जो है पेश नहीं कर सकते। पीएसए के ऊपर मैं देख रही हूँ पिछले 12-13 दिन से देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सपर्टीज। यहाँ पे हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो एक्सपर्टीज दिखा रहा है। वी हैव एन नंबर ऑफ लॉयर्स हु आर टाइम एंड अगेन स्पीकिंग ऑन दी पीएसए। उसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो पीएसए के ऊपर बोल रहे हैं। हर किसी को बोलने की आजादी है, यू कैन नॉट गैग एनीवन। मगर क्योंकि इस लीगल टीम की मैं एक असिस्टेंट काउंसिल हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है आप तक ये चीज पहुंचाना कि मैं डिफेंस को लीक आउट नहीं कर सकती। अगर हमने 19 तक representation की या नहीं की, that is also a part of our defense. उसके पीछे भी there are certain permutation combinations that are involved. That perhaps is a reason we are not revealing. और आपके आखिरी सवाल का मैं जवाब दूंगी। आपने कहा is there any cooperation? There is immense cooperation amongst the team. मैंने आपको पहले भी बोला है, मुजफ्फर खान जी हैं, शेख शकील अहमद जी हैं, both of them are very prominent lawyers, very prominent lawyers. उनके साथ जो है I'm assisting them और उन्हीं के साथ जो है there are 6 supporting एडवोकेट्स। अब बात आ जाती है आपके लास्ट प्रश्न की ओर कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको पीएससी की एक्सपर्टीज नहीं है, XYZ को नहीं है। एवरीबडी इज एंटाइटल्ड। आई एम टेलिंग यू दैट आपकी अपनी ही टीम। सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द मेंबर्स हु हैव लीक्ड आउट, हु मेड सच स्टेटमेंट्स। अगर उन्होंने, जहां तक कि मेरी नॉलेज है, नन ऑफ देम हैव मेड सच स्टेटमेंट। बट ऑफ कोर्स आप बड़े वरिष्ठ वकील हैं, अगर आप कहते हैं कि किसी टीम मेंबर ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, देन वील क्रॉस चेक, बिकॉज हमें पूरा विश्वास है अपने सीनियर्स पे। अगेन आई एम रिपीटिंग, द टीम इज बीइंग लेड by Muzaffar Khan ji and by Sheikh Shakil Ahmed. I am an assisting counsel to it and we have 6 supporting counsels. और हमारी बड़ी अच्छी जो है, we have a very great bond और जिसकी जो दायरा है जिसका, उस दायरे में रह के वो अपना काम कर रहे हैं। You had talked about Maharaj Malik has given some statements from jail. Tell me what is the situation inside jail? Is he getting a special privilege what an MLA should get there, or he is sharing room with others? Who are the others who with him in his room? देखिए, महराज मलिक जी से उनकी फैमिली मिली है। The information that we've received from the family is that उनकी health, whether it is physical or whether it is mental, he's in absolutely a very positive set of frame of mind. वो physically भी बड़े ही तंदुरुस्त हैं और मेंटली भी बड़ा रोबस्ट उनका जो है मेंटल फ्रेमवर्क है। अब उनको वो बड़े एक आम तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं और हमें जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कहा गया, वो यही मैसेज महराज मलिक जी ने अपने फॉलोअर्स के लिए भिजवाया, दैट ही इज एब्सोल्युटली फाइन एंड ही इज गॉट अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। Any detail how many are there in the room with him? No, I personally do not have any knowledge about it. Anything else? आपने कल मीडिया के सामने उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि पहला उन्होंने जो टेस्ट अप लिया है, जी, पहला कारण ये है कि जो लीगल टीम जो महराज मलिक का केस हैंडल कर रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज का एब्सोल्युटली लिया जा रहा है। जी। लेकिन वो लोग कौन है जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये है कि उनका नाम आम आदमी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। देखिए, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज देयर सर्टेन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो आए थे और जिन्होंने पैसे की क्राउड फंडिंग की बात करी थी।
कल भी मैंने परसों भी एक बाइट दिया था, एंड अगेन आई एम रीटरेटिंग इट, और बड़े ही जैसे कि सशक्त शब्दों में कहूंगी, द लीगल टीम इज नॉट गोइंग अहेड विद एनी क्राउड फंडिंग। हमें माता रानी की बड़ी मेहर है, हम लोग हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी अच्छी है, हमें किसी भी तरह के पैसे की या क्राउड फंडिंग की जरूरत है नहीं। हमारा एक ही जो है इस वक्त प्राथमिकता है, वो है टू हैंडल मिस्टर मलिक्स केस इन अ वेरी पॉजिटिव फैशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट।